जय गुरु जी। ओम गम गणपते नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। So my humble pranams at Guruji's lotus feet today, and as always, request him to guide us and lead us in the path that he wants to as we read this Mahagranth, this Shiv Puran, as directed by him. So, once again, Sangat ji, आपको भी जय गुरु जी, एंड आप सबको मेरा प्रणाम। और कोई भी भूल चूक हो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आज के पठन पाठन के क्रम में आप सबका स्वागत है। So today for English we have chapter 12 of Vidveshwar Samhita, जो पहली संहिता है शिव पुराण की। So we already done with the Mahatmya, and in Vidveshwar Samhita we have come to chapter 12. Quick recap, because we see how the six sages, who are the six schools of thought, actually, उनका आपस में संवाद होता है, ना कि विवाद, बल्कि संवाद चलता है कि क्या चीज करना चाहिए, क्या चीज बड़ी है, क्या छोटी है। इस तरह से उनका जब ये संवाद होता है और क्या श्रेयस्कर है, ये सब जानने के लिए जब वो सूत जी से प्रश्न करते हैं, जब वो पता लगाते हैं, तो उनके प्रश्नों के उत्तर में ही ये पूरा शिव पुराण की चर्चा होती है। So because Sanatan Dharma, it is born not out of blind faith, but out of curiosity to know, and then we know that whatever is told is logical, it is for the good of human beings. So, and the questions definitely, they are based on faith and for the greater good of humanity. So we had seen how Shiv Puran is the sum total of all Vedant. It dispels sins, and how by just listening to it, a person can become like Rudra, refraining from loose talk. We can read here just the Rudra Samhita, it has been said, which is the nectar prepared by Lord Shiv after churning the ocean of Upanishads and handed to Kartikeya, first to Uma and then to Kartikeya, and this undeceptive virtue has been extolled. So, what is achievable is attainment of Shiv. What is the means of achieving this is service rendered, Shravan, Kirtan, Manan. All this leads towards Shiv Tattva. And so we also have this battle between Brahma and Vishnu, and Shiv coming as a column of fire, and Shiva's forgiveness of Brahma. And one thing comes out very clearly, that Shiv does not like the Parabrahm, the Sat does not like deception or jhoot in any form. मोहि कपट छल छिद्र न भावा. सो भांडा साफ रखने की बहुत बड़ी हिदायत दी गई है. So we saw Shiv as Maheshwar, the Panch Kriya, the Omkar Mantra, and how to worship Shivling and the 5 faces of Shiv. So now in chapter 12, we come to the narrative of Shiva's holy centers and temples. So, like the earlier chapters, as we see, they establish Shiv as Nirgun and Sagun, and there's that emergence of the supreme symbol of worship, and that is Ling. उसका emergence हमने उसके बारे में सुना, पढ़ा.
But when we come to chapter 12, जब ये narrative of Shiva's holy centers and temples है संगत जी, so it marks a transition from that abstract Shiv, ठीक है, that abstract metaphysics to sacred geography. So it becomes so relatable. अब हम एक geography की तरफ बढ़ रहे हैं, so it becomes very relatable. और क्या होता है, एक जो abstract metaphysics है उसकी हम grounding हो जा रही है यहाँ पे, उसको धरातल पर हम उतार करके ले आए हैं. So शिव जी की कैसी cosmic presence है in the physical locations, that is what chapter 12 tells us. So what does it do? हम ज्योग्राफी तो बहुत पढ़ते हैं और ये ज्योग्राफी किस उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वो थियोलॉजी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है. तो यहाँ पे जोशी आंटी हैं फॉर डेफिनेटली, जिनका ज्योग्राफी सब्जेक्ट रहा है एमए में भी, तो वो भी वो उसको कितना अच्छा रिलेट कर पाएंगी कि ज्योग्राफी जो एक साइंटिफिक स्टडी है इस अर्थ की, उसको थियोलॉजी में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, उसकी पवित्रता को बता दिया गया है. और फिर क्या है कि टेम्पल वर्शिप क्यों करनी चाहिए, दैट हैज ऑल्सो, वो हमारे अंदर एक लॉजिकली बैठ जाता है दैट टेम्पल वर्शिप इज गुड, इट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन एनर्जी. वो ऐसे ही एक बिल्डिंग नहीं है, एक ऐसी एक सुंदर कलाकृतियां ही नहीं हैं. इट हैज मोर टू इट, इट हैज डिविनिटी हिडन बिहाइंड ऑल दैट art and architecture. So it establishes तीर्थों का महात्म्य. That is what chapter 12 does. और शिव जी की जो eminence है, that Shiv is not confined to just Kailash. शिव जी हमारे बीच में present हैं और willingly he abides here in this world in different locations. तो वो हमको इस चैप्टर में पता चलता है. And we also realize that pilgrimage का महत्व क्या है और वो कैसे एक spiritual practice है. It is not just a statement, status डालने के लिए सिर्फ pilgrimage नहीं है कि हम कैलाश दर्शन के लिए गए या हम केदारनाथ गए या हम यहाँ गए, वो सिर्फ status डालने मात्र के लिए नहीं है. It is a spiritual practice. It is just to be there and to understand what is there, not just for photo ops. And bhakti kya hai? Bhakti is oriented in this worship. And तो जो मेटाफिजिक्स की बात हमने पहले चैप्टर्स में करी है, वो लिव्ड स्पेसेस में हमारे चारों तरफ बिखरी हुई है. तो शिव कहीं बहुत दूर नहीं है, बल्कि हमारे पास ही है. तो ये मेरे को चैप्टर 12 का निचोड़ लगता है. एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू लुक एट इट. ये शिव पुराण कब का है? आज भी अगर हम देखें तो हमको देखना पड़ता है, अच्छा क्या ऐसा है, क्या ये नदियों के इतने मुंह हैं, इतने इतने सारे स्रोतों से ये नदी आती है, लेकिन यहाँ ये सब लिखा हुआ है. और ज्योग्राफिकल लोकेशंस भारतवर्ष की कितनी अच्छी तरह से दी गई हैं. और काफी चीजें हम आइडेंटिफाई नहीं कर जाते क्योंकि ओवर द इयर्स वो या तो लुप्त हो गई, या उनके नाम ट्रांसफॉर्म हो गए, या वो नदियां सूख गई हैं, या वो जगहों का वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है. जहाँ पहले सरस्वती नदी थी, वहाँ रेत का वो हो गया है. तो इसलिए वो काफी चीजें हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ये कहाँ पर है. और तो इस तरह से आप ये देखिए कि उस टाइम पर कितना क्या कुछ रहा होगा. आज तो हमको थोड़ा सा भी देखना होता है कि लोकेशन भेज दो, लोकेशन चाहिए, मैप चाहिए कि कौन जगह कहाँ पर है, कैसे है. हम मैप्स का सहारा लेते हैं और फिर भूल भी जाते हैं कि कैसे था क्या नहीं था. हमारे पुराणों का ज्ञान देखिए, जैसे कि कोई ऊपर से सैटेलाइट से देख रहा है एक एक चीज को, और ऐसे नहीं बहुत ऊपर से एक बिंदु की तरह नहीं देख रहा है, उसको जूम करके पूरा देख करके हमको बताया गया है कि कैसे क्या है. तो ये भी पुराण का ये लिंक भी हो गया कि इट इज फैक्चुअल, इट इज ऐसी कोरी कल्पना नहीं बता दी गई है. तो इसके अंदर जो है वो फैक्ट्स भी हैं, ये भी हमको बहुत अच्छा समझ में आएगा. एंड इट इज वेरी, वी फील सो मच प्राउड कि हमारे सनातन में ये है, ये पुराणों में इस तरह से कितना सुंदर ये वर्णित है.
तो इसको हम दोबारा से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये गुरुजी की ही कृपा है। तो गुरुजी का शुक्राना करते हुए चलिए हम इस चैप्टर का आनंद लेते हैं। There's only one chapter today, the narrative of Shiva's holy centers and temples। एक चैप्टर होते हुए भी इसमें कितने सारे अध्याय जुड़ गए हैं, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज entire Shiva's manifestation here in this भारतवर्ष, वो हमको जानकारी इसमें मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी। So Sut said, O wise sages, please listen to the narrative of holy centers with Shiva's temples, all of which accord salvation. Thereafter, I shall tell you the tradition for the welfare of the people. The earth, 50 crores of yojans in extent, abounding in mountains and forests, supports the people at the bidding of Shiv. And so-called जो cultured लोग होते थे वो क्या कहते थे कि पृथ्वी फ्लैट है ना। लेकिन हमारे पुराणों कब से उसके बारे में क्या कहा गया है, पंचशत कोटि विस्तीर्णा सशैल वन कानना शिवाज्ञा ही पृथ्वी लोकम धृत्वा च तिष्ठति। ये इसका मैंने संस्कृत पढ़ा, ये जो अभी मैंने इंग्लिश में पढ़ा था। The Lord has himself raised up these temples and holy centers in different places for the liberation of the residents of these localities। देखा, तो लोगों के लिए शिव जी खुद ही उतर करके आ जाते हैं। तो इसीलिए हर कोई तो कैलाश नहीं जा सकता है, कैलाश यात्रा पर या 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर। तो गुरुजी ने क्या किया, 12 ज्योतिर्लिंगों का पूरा शक्ति वहां पे बड़े मंदिर में कर दी, ताकि वहां पर वो एक्सेसिबल हो जाएगा लोगों को। इसका मतलब ये कहने का नहीं है कि और जगह कहीं शक्ति नहीं है, उन्होंने उसको जैसे एक्सेसिबल, ऐसे ही शिव जी ने क्या किया, शिव जी ने जगह जगह लोगों के लिए अपना, गुरु जी ने अपना स्वरूप विस्तीर्ण स्थापित कर दिया, ताकि लोगों को वो एक्सेसिबल हो जाए। क्योंकि हर कोई तो कैलाश तो कोई जा ही नहीं सकता है, एक्चुअल कैलाश का जो क्लाइंब है। तो it is indeed such an eye opener, and it's so beautiful, and how much we can relate it to Bade Mandir ke liye, or how much we can relate it to Guruji himself. So the temples, whether self-risen or not, स्वयंभू हैं या ना हो, in view of their being accepted as their frequent resort by the sages and devas, are intended for the redemption of the people। बहुत क्लियर लिखा है, कभी स्वयं, ये हम नहीं जैसे स्वयंभू है तभी उसकी वो है। एक जगह अगर पिलग्रिमेज बन जाता है, एक तीर्थ स्थान बन जाता है, उसकी एनर्जी ऐसी हो जाती है कि वो लोगों का कल्याण करने वाली होती है। जैसे गुरु जी भी कहते थे कि इस मंदिर के इतने, उसके पास से भी कोई गुजर जाएगा बड़े मंदिर के, तो उसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी ही ऐसी है। इन दीज होली सेंटर्स एंड टेम्पल्स, एब्ल्यूशंस, चैरिटेबल गिफ्ट्स, जपर्स etc. must be regularly performed. Otherwise, men are sure to be affected by ailments, penury, dumbness, etc. देखिए, फाइन प्रिंट भी इसमें दिया गया है कि यहाँ पर अगर है तो यहाँ पे शौच, स्वच्छता और दान, भांडा साफ रखना, फिर दान देना, अच्छे कर्म करना, ये सब भी, और मंत्र जाप, ये तो बहुत जरूरी है। If a man dies anywhere in Bharatvarsh, he shall be reborn again as a man if he has resided in a holy center where there is self-risen phallic emblem of Shiv। देखिए, हम कितने फॉर्चुनेट हैं कि हम ये भारतवर्ष में पैदा हुए हैं। वो कह रहे अगर कोई यहाँ आकर के उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो भारत पूरा, और भारतवर्ष तो पूरा बहुत बड़ा है, सिर्फ आज का इंडिया का मैप नहीं है। भारतवर्ष तो बहुत, हिंदू कोश की तरफ से सारा यहाँ पे फुटनोट दिया हुआ है, उसको मैं पढ़ लेती हूँ कि भारतवर्ष is one of the 9 divisions of the earth as separated off by certain mountain ranges, the other 8 divisions being Kuru, Hiranyamai, Ramyak, Ilavarth, Hari, Ketumal, Bhadrash and Kinnar. It is surrounded by ocean in the southwest and east by the Himalayas. In the Himalayas in the north. Bharat, who gave
This name to this country was the descendant of Swayambhu Manu. He was the king of, one second, मेरा वो पेज थोड़ा सा हो रहा है, अग्निधारास फैमिली। तो भारत का नाम कैसे पड़ा? भरत के ऊपर पड़ा, और भारत का तो अर्थ ही बहुत सुंदर है। भा का अर्थ होता है लाइट। तो जो लाइट ऑफ डिविनिटी की खोज में जो लगा रहता है वो भारतीय है, और वो लैंड जहाँ की लोग, जहाँ वो लाइट ऑफ डिविनिटी है, और जहाँ इतने सारे तीर्थ स्थल हैं, तो वो भारत ही हुआ। और वैसे भारत का हिस्टोरिकली कैसे नाम पड़ा वो भी हम इसमें हमने जाना। So आगे पढ़ते हैं। ओ ब्राह्मण्स, committing sins in a holy center is of ineffable character. When a man stays in a holy center, he must not commit even smallest sin। देखिए ये बात है, हम बहुत इजीली कह देते हैं ना, हम तो तीर्थ स्थान गए, हम तो तीर्थ स्थान गए, कि हमने अपना भांडा साफ रखा। ये चीज भी बहुत बड़ी बताई है कि भक्ति भाव और अपना पर्सनल टेम्पल को भी हमको ध्यान देना है। इट इज नॉट ओनली अबाउट आई विजिटेड दिस, आई डिड दिस, आई डिड दैट। इट इज नेसेसरी कि वहां अगर हम पहुंचे तो वहां जाकर के हम कोई भी गलत काम ना करें, कोई भी मानसिक पाप भी ना करें, क्योंकि उसमें ये कहा गया है कि पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम बहुधा रिद्धिमिच्छति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम महदन्यपि जायते, तत्कालम जीवनार्थ चेत पुण्येन श्रमेष्यति, पुण्य पुण्यैकश्चर्य प्राहु कायिकम या वाचिकम तथा मानसम च तथा पापम तादृशम नाशदे द्विजा, मानसम वज्रलेप तुल्यम कल्पकल्पानुकम तथा। ये वज्र की लेप की तरह वो हो जाता है, जैसे फेविकोल का जोड़ है ना, उस तरह से वज्र लेप का जैसा हमारे ऊपर चिपक जाता है कौन सा? मानसिक पाप। और उसके लिए प्रायश्चित भी उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। So that's why it is necessary that if you go to a holy center, पूरा निष्पाप होकर के, पूरा श्रद्धा से, भक्ति से हमको वहां जाना चाहिए। Somehow men must strive to find residence in a holy center. On the shores of the ocean, in the confluence of hundreds of rivers, there are many such holy centers and temples. And हम कहते हैं the holy river Saraswati is said to have 60 mouths, 60 उद्गम हैं सरस्वती के, और holy centers on its banks, और सभी banks पे क्या हैं? Holy centers हैं। Hence, an intelligent man must stay on its banks. He shall attain Brahma's region gradually. The river Ganga, flowing from the Himalaya mountains, is very holy with its 100 mouths. 100 मुख हैं गंगा के, नदी के। There are many holy centers on its banks, such as Kashi, etc. और काशी को तो अविमुक्त क्षेत्र कहा ही जाता है। वहां की एनर्जी तो अगर हम सच्चे भाव से जाएं तो उस एनर्जी को हम फील कर सकेंगे। इट्स बैंक्स आर हाईली सेक्रेड इन द मंथ ऑफ मार्गशीर्ष, or when Brihaspati, Jupiter, is in the zodiac Capricornus. The river Shonbhadra has 10 mouths and is holy and yields all celestial desires। यहाँ पे शोनभद्र के बारे में भी फुटनोट दिया है, इसको भी मैं पढ़ लेती हूँ। The river Shon, also called Sone or Sona, rises in Gondwana in Madhya Pradesh on the tableland of Amarkantak, 4 or 5 miles east of the source of Narmada River, and running first northerly and then easterly for 500 miles, falls into the Ganges of a Patiputla of Patna. It is called Magadhi Nadi, since it forms the western boundary of Magad. तो ये हमने शोन नदी के बारे में हमने फुटनोट पे मैंने पढ़ा इसको। So it has 10 mouths and is holy and yields all cherished desires. By ablutions therein,
and observing fast, the devotee shall attain the region of Ganesh. The holy Narmada, तीसरा है नर्मदा नदी के बारे में तो हम जानते ही हैं काफी. It rises in the Vindhya Mountains, falls into the Gulf of Cambay. It flows in wide flood plain and is fairly deep. It forms a suitable boundary between the political units of north and south of it. और फिर हम नर्मदा के बारे में तो जानते ही कि नर्मदा का जो हर पत्थर है वो शिवलिंग होता है और उसकी कोई प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं होती है. So the holy Narmada is a great river of 24 mouths. By a dip therein and residing on its banks, the devotee shall attain the region of Vishnu. The river Tamsa is of 12 mouths and Reva has 10 mouths. Tamsa, जिसको तौंस भी नदी कहते हैं, तो इसके बारे में भी footnote दिया है. It is identified with Tons, which issues from Rishipad mountain, appears in Bundelkhand region and flows into the Ganges below Allahabad. और वैसे एक टॉन्स नदी में देहरादून में भी उसकी बारे में सुनती हूँ, पर मुझे पता नहीं कि ये सेम है कि नहीं. यहाँ पे तो इसको बुंदेलखंड का दिया गया है. So the river Tamsa is of 12 mouths and Reva has 10 mouths. तो रेवा नदी के बारे में भी फुटनोट दिया है कि रेवा एंड नर्मदा are two small branches of one and the same river in the upper course, which are later united into one river. गोदावरी, गोदावरी के बारे में भी फुटनोट दिया हुआ है. This river is known as Goda or Godavari, forms an important unit in the historical geography of South India. It drains a large area mainly composed of Deccan lava and flows through wide, fertile valley towards the east. Its catchment area is bounded in the north by Sahya Mountains, the the Nirmal and Satmal ranges and hills of Bastar and Orissa, known to the Puranas as Mahendra Parvat. ये इसके बारे में footnote दिया हुआ था गोदावरी के बारे में. So the Godavari is very holy and it quells sins of murdering a Brahmin. वो हम गौतम ऋषि की कहानी बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, जब 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में पढ़ेंगे. Or murdering a Brahmin or slaughtering a cow. It is said to have 21 mouths and accords Rudralok. Krishnaveni is a sacred river destroying all sins. It is said to have 18 mouths and accords Vishnulok. और Krishnaveni के बारे में भी जो footnote है वो कहता है it rises from the Sahya Mountains. It is united stream of Krishna and Veni. दो rivers हैं, तो कृष्णा और वेनी वो मिलकर के कृष्णवेनी बन जाते हैं. It flows into the Bay of Bengal. फिर Tungabhadra, it rises from the Sahya Mountains and joins the Krishna River, has 10 mouths and it accords Brahmalok. The holy Swarnamukhari के बारे में फिर footnote है. It is one of the most sacred rivers in southern India. After issuing from Mahendra mountain, falls into the southern sea, passing through beautiful hills and dales along with its tributary streams. So the holy Swarnamukhari is said to have 9 mouths. Those who fall from Brahmalok are born there. By residing on the banks of the auspicious river Saraswati, तो Pampa, it's a tributary of Tungabhadra का है Pampa के लिए, and Pampa सरोवर का के बारे में तो हम रामायण में जिक्र हम सुनते ही हैं. Kanya is not identified. The country situated on the bank of this river is sacred, it is said. And Shweta Nadi, again, it is not identified. One shall attain Indralok. The great river Kaveri
उस कावेरी का तो हमने नाम सुना है. It is one of the most sacred rivers which takes its rise from Sahi mountains. It is said to have many tirthas, particularly Shiv Kshetras on its bank. Flowing from the mountain Sahi, it's very holy and is said to have 27 mouths. It accords all cherished desires. Its banks are the bestowers of heaven and the regions of Brahma and Vishnu. तो हम सोचेंगे कि इतनी ज्योग्राफी हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं शिव पुराण में. तो वही देखिए कि आपको जब आप ज्योग्राफी से इसको रिलेट करेंगे तो आपको लगेगा कि शिव कैसे यहाँ पर हमारे साथ बसते हैं. वो सिर्फ एक ऐसे कोई डिस्टेंट गॉड नहीं है कि जिनको कि हम ना तो जान सकते हैं ना समझ सकते हैं. ही इज अप्रोचेबल, ही इज अमिट्स अस. वो बिल्कुल पास हैं. तो इसलिए हमको ये ज्योग्राफी के बारे में भी बताया गया है ताकि हमारी जानकारी भी बढ़े. और ज्योग्राफी हमारे लिए, अगर हम ज्योग्राफी के साथ मैं सोचती हूँ कि ये सब भी पढ़ते, जब हम बचपन में पढ़ते थे बस वो मैप ड्रॉ करना, कहाँ कौन सी नदी है समझ में ही नहीं आता था मेरे तो, कि कहाँ से कौन नदी निकल रही है, कहाँ को जा रही है, कुछ भी लाइन खींच दो कहीं पे. लेकिन जब ये लिव्ड हो जाती है ना, जब हम इससे रिलेट करते हैं तो कितना वो जीवंत हो जाती है ज्योग्राफी. तो मेटाफिजिक्स से और अपनी डे टू डे लाइफ से, अपनी ज्योग्राफी से हम कितना जो निकटता संबंध बन जाता है. दैट इज व्हाट शिव पुराण, शिव तत्व इज ऑल अबाउट. इट इज फाइंडिंग योरसेल्फ, फाइंडिंग शिव everywhere and finding yourself in Shiv regions here. The devotees of Shiv are the bestowers of Shivlok and accord cherished desires. When the Jupiter and Sun are in the zodiac of Mesh, the devotee shall take holy bath in Naimisharanya and Badrayan जगह है. Naimish, modern Nimsar, is sacred region in Uttar Pradesh and is in the district of Sitapur on the banks of Gomati. Naimish was sacred in Krit age as Pushkar in Treta and Kurukshetra in Dwapar, and Ganga in Kali age. तो नैमिषारण्य का सत्युग में बहुत महत्व था, ये कहा गया है. नैमिषारण्य जिसको हम जानते हैं. फिर भद्र जो दिया है, नेम ऑफ हर्मिटेज ऑफ नर एंड नारायण. नर नारायण पर्वत हैं हिमालय में. in the neighborhood of Gangodbhed, the source of the Ganges. वहां से गंगोत्री भी पास है. तो नर नारायण पर्वत के बारे में कई कहानियां हैं, उनमें हम नहीं जाएंगे. तो उसके बारे में भी हमको बताया है. Worship etc. thereafter accords Brahmalok. When the sun is in Karkata or Simha, one shall take bath in Sindhu, that is Indus Nadi. Sindhu Nadi जो है हमारी, the sacred river of ancient India takes its rise from the Himalayas, flows in the western Pakistan and falls into western sea. तो यहाँ पे तो हम भारतवर्ष की बात कर रहे हैं. तो सिंधु नदी जो है. On the occasion of drinking of sacred water of Kedar, फिर केदार के लिए भी वो फुटनोट दिया हुआ है. It refers to Kedar Ganga or Mandakini in Garhwal region. On the occasion of drinking of the sacred water of Kedar and ablution, therein accords perfect knowledge. Shiv himself has mentioned before that bath in Godavari in the month of Singh with Jupiter is also, when Jupiter is also in the zodiac of Sim, accords Shiva's region. When Jupiter and the Sun are in the zodiac of Kanya, ablution shall be performed in the rivers Yamuna and Shon, the fruit of which is great enjoyment in the worlds of Dharm and Dantin. Dantin Ganesh ji ko कहते हैं. When the Sun and Jupiter are in Tula, the devotee shall take bath in Kaveri, the fruit whereof
is the attainment of all cherished desires as stated by Vishnu himself. The devotee who takes bath in the river Narmada in the month of Vrishchik, when the Jupiter is in the zodiac of Vrishchik, attains Vishnu Lok. Brahma has stated that the bath in Swarnamukhari, when the Sun and Jupiter are in the zodiac of Dhanu, accords Shivlok. The devotee shall take bath in Janvi or Ganges, or Ganga जिसको हम कहेंगे, in the month of Mrikshish, Margshish भी इसको कहते हैं, when Jupiter is in the zodiac of Capricornus. After enjoying pleasure in the region of Brahma and Vishnu, he will gain perfect knowledge in the end. और अभी हम माघ स्नान की तो बात कर ही रहे हैं कि माघ स्नान क्या है, माघ का महीना शुरू हो गया है, तो हम सोचेंगे ये सब कैसे कैलकुलेट होते हैं, तो कैलेंडर भी तो हमको मिलता है ना, न्यू ईयर कैलेंडर मिलता है, तब हमको पता चलता है आज 1 जनवरी है, आज 2 है, आज 3 है, आज ये डे है, आज वो डे है, तो हम वो डेट्स देख करके ही तो करते हैं ना कि आज ये है। वैसे ही तो पंचांग भी है, वो भी कैलकुलेशंस के आधार पर बना हुआ है, और पूरे उसमें है कि कब कहाँ पर कौन सा जोडियाक साइन, कौन सा जोडियाक वो है, कहाँ पर सूर्य किस जोडियाक साइन में एंटर कर रहा है, और जब वो पर्टिकुलर जोडियाक साइन में जब सूर्य एंटर करता है, उसमें कुछ फ्लेयर्स होती हैं, कुछ एनर्जीज होती हैं जो कि जल बहुत एब्जॉर्ब करता है, और उस पर्टिकुलर स्थान का जल एब्जॉर्ब करता है। साइंटिफिकली अगर हम इसको देखें, तो अगर हम बहुत ज्यादा वो साइंटिफिकली समझना चाहें, तो उस समय जल में स्नान करने से बहुत सारी डिवाइन एनर्जीज उस समय हमको मिलती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। वो साइंटिफिकली भी अगर हम स्टडी करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं, और आध्यात्मिक रूप से हम करना चाहें तो सिर्फ शिव पुराण के वचनों को हम फॉलो कर लें, तो हमको पता चलेगा कि कैसे डिविनिटी इस तरह से शिव जी ने, शिव की आज्ञा से डिविनिटी सब जगह हमारे सामने उपलब्ध है। व्हाट वी नीड इज अपना भांडा साफ रखें, एंड वी नीड एन ओपन माइंड टू एब्जॉर्ब दिस विदाउट जस्ट अ डिजायर टू जस्ट टू पब्लिसाइज दैट व्हाट वी आर डूइंग, क्योंकि आजकल सिर्फ इसका जमाना है। इन द मंथ ऑफ माघ, व्हेन द सन इज इन द जोडियाक ऑफ कुंभ, Shraddh offerings of pind and water libations with gingerly seeds raised crores of manes on both sides, paternal and maternal. जो श्राद्ध इस समय पे किया जाता है, उसमें बहुत सारा जो होता है, उस समय सारे जो पितर हैं, चाहे वो हमारे मातृ साइड में हो या पितृ साइड में हो, उन सबको मुक्ति मिलती है। When the sun and Jupiter are in the zodiac of mean, ablution shall be performed in Krishnaveni. तो किस स्थान पर करने से ज्यादा उसका यूज होता है, वो होता है। और नहीं तो फिर हमारे यहाँ बहुत इजी, अगर हम सब जगह ना जाए तो मंत्र के द्वारा हम मानसिक रूप से परिकल्पना कर लें कि गंगेश यमुनेश व सारी नदियों का जल एक जगह पे एकत्रित हो गया, मानसिक रूप से हम भाव कर लें तो वही चीज का फल हो जाता है। The ceremonial ablutions taken in different sacred rivers in the respective months accord the region of Indra. An intelligent man shall resort to Ganga or Kaveri river. Certainly his sins will be quelled thereby. There are many holy centers yielding to Rudralok. There is Tamraparani. It issues from Malay Mountain, south ki river hai, and Malay Mountain called the Travancore Hills in the southern part of Western Ghats. And Vegavati. It is the modern Baiga or Bijari in the district of Madurai, जिसको वैगई नदी भी कहते हैं। एक्चुअली इसका वेगवती था, और इसीलिए वैगई माने बहुत तेज चलने वाली, लेकिन अब तो उसका फ्लो बिल्कुल कम हो गया है। हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम हैं। तो ये ताम्रपर्णी जो कि केरला साइड की, और वेगवती जो कि तमिलनाडु में है, दे अकॉर्ड ब्रह्मलोक। There are holy centers on their banks, और अगर आप चले जाएं साउथ में तो
इतने सुंदर सुंदर मंदिर कि हमको कभी लगेगा कि ऐसा अगर चिदम्बरम वगैरह चले जाए, माने मीनाक्षी मदुरई मंदिर वगैरह को देख लें, या केरल के मंदिरों को आप देख लें, गुरुवायूर वगैरह को, कोई भी इतने सारे क्षेत्र हैं कि नाम लेना मुश्किल होगा। तो ऐसा लगता है कि माइंड बॉगलिंग लगता है कि अच्छा यहाँ पर ऐसे क्षेत्र, रामेश्वरम चले जाइए कहीं भी, तो पूरा हमारा भारतवर्ष कैसे एक है, और कहाँ कैसे कैसे शिव की जो शक्ति है वो किस तरह से सब जगह स्थापित है। In between these rivers, there are meritorious holy centers. Intelligent men residing there will reap the respective fruits thereof. Only by good conduct, good predilections, and good concepts, as well as by being sympathetic, can the devotee derive the benefit, not otherwise. तो सबसे बड़ा बताया गया है आचरण का महत्व। गुड कंडक्ट, भांडा साफ रखो, अपना आचार ठीक रखो। भांडा ही से साफ रखना है, इनके नहीं, मैं मेरे पाप नहीं, मेरे पाप नहीं, तो उसको वो आपके आचरण में भी आएगा। गुड कॉन्सेप्ट्स, हमारे विचार अच्छे हों, और सिंपैथेटिक हो, दूसरे के लिए हमारे मन में संवेदना हो। दूसरा माने हर चीज, हर जीव, हर प्राणी के लिए संवेदनशीलता होनी चाहिए। कैन अ devotee derive the benefit, not otherwise। तो अगर हम निंदा चुगली ना करो कहते थे ना गुरु जी, अगर वही सब हम करने लगेंगे तो फिर हम we will lose the direction, and as human beings we will go into that. But reading of Shiv Puran, or when we relate this Shiv Puran to Guruji's vachan, then what will happen, our mind will be controlled। वो एक तरह का मंत्र बन जाएगा कि हमारे मन को हम कंट्रोल करके सही दिशा में चलेंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। Meritorious actions performed in holy center flourish in many ways. Sinful acts committed in holy center through slight become manifold। वही मैंने वो श्लोक भी पहले पढ़ लिया था एक्चुअली, कि कैसे वो पुण्य क्षेत्र में किया हुआ सिन जो है वो बहुत कड़ा हो जाता है, और वहां पे आप अच्छे कम कर्म करेंगे तो वो भी बहुत फलदायक होते हैं। लेकिन अगर वहां पे आप पाप करें तो आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे और वो वज्रलेप की तरह चिपक जाएगा। If the sin committed in holy center is only for livelihood, the merit will destroy that sin. Merit accords prosperity and quells physical, verbal, and mental sins. O Brahmins, the mental sin is adamantine, वही वज्रलेप की तरह हो जाता है, मानसिक पाप पुण्य क्षेत्र में किया हुआ, in sticking to the sinner, and it continues for many kalpas. The mental sin can be wiped off only by meditation। तो एक ही तरीका बताया है, और तरह में आप ध्यान जप वगैरह कर सकते, सॉरी आप जप और दान ये सब कर सकते हैं, लेकिन मेंटल सिन सिर्फ ध्यान से कर सकते हैं। ध्यान से ही वो दूर होगा, जो मानसिक सिन है। उसमें कहा है यहाँ शिव पुराण में 39 श्लोक में कि ध्यानादेव ही तन्नाश अन्यथा नाशम मिच्छति वाचिकम जप जालेन। वाचिक को तो हम जप से कर सकते हैं। कायिकम काय शोषणात्, और कायिक पाप है तो हम शरीर को तपा करके उसको दूर कर सकते हैं, लेकिन मानसिक पाप सिर्फ ध्यान के द्वारा होगा। एंड सो वेरी वेरी लॉजिकल ना। वाचिक आपने बोल करके पाप किया है तो जप कर लीजिए, उससे वो दूर होगा। ठीक से जप मन अच्छी तरह से उसका वो आप जप करेंगे मंत्र जप, तो आपके वाचिक खत्म हो जाएंगे। उसके बाद अब काय, अपने शरीर से आपने पाप किया है तो अपने शरीर को तपा करके आप उसको शारीरिक पाप से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने मानसिक पाप किए हैं तो उसको लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा, और ध्यान बहुत मुश्किल होता है। कहना इजी है कि ध्यान कर लो, अरे बहुत इजी है, तो लेकिन ध्यान करना कितना मुश्किल होता है, और वो सिर्फ शुद्ध ध्यान से ही निकलता है। So the mental sin can be wiped off by meditation and not otherwise. The verbal sin is wiped off by japa. The physical sin by forcefully causing the emaciation of body. Sins committed by means of wealth can be wiped off by making charitable gifts and not otherwise, though crores of kalpas, aeons may elapse.
तो इसी तरह से अगर हमको अपने पापों से मुक्ति है तो ये उसके उपाय हैं. इन सम प्लेसेस द इंक्रीजिंग सिन डिस्ट्रॉयज द merit. Both merit and demerit have three aspects: the seed stage, the flourishing stage, and the enjoyment stage. चाहे आपका पुण्य हो या पाप हो, 3 स्टेजेस पे वो जाता है. तो कर्म का फल बताया है कि 3 स्टेज उसकी होंगी ही होंगी. If they are in the seed stage, they can be quelled by perfect knowledge. जस्ट जर्मिनेट हो रहा है तो अपने ज्ञान से हम उसको वो ध्वस्त कर सकते हैं. If they are in the flourishing stage, they can be quelled in the manner described before. तो जब वगैरह से कर सकते हैं. If they are in the enjoyment stage, they get destroyed only by enjoying and experiencing their fruit and not otherwise, though one might have performed course of meritorious deeds. तो उसके थ्रू जाकर के ही हम उस पाप से मुक्ति पा सकते हैं. उसको एंजॉय करना मतलब अगर गलत काम है तो उसके थ्रू भी, उस दुख के थ्रू भी हम को जाना ही पड़ेगा. इसलिए गुरु जी कहते थे मैं इतना परसेंट तो तुम्हारा मैं कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा तो तुमको भोगना ही पड़ेगा. उसके थ्रू आपको जाना ही पड़ेगा. वो तो क्योंकि वो शिव थे तो वो कुछ हर लेते थे, लेकिन बाकी के थ्रू तो हमको जाना ही पड़ेगा और उसका कोई तरीका नहीं है. If the seed or the flourishing seedlings are destroyed, what remains must be experienced. उसके बाद भी जो बचेगा उसको भी हमें एक्सपीरियंस करना पड़ेगा. ये कर्म का सिद्धांत बहुत गूढ़ है. And then wiped off. तो बिना एक्सपीरियंस करे हम किसी चीज को वाइप ऑफ आउट नहीं कर सकते, नहीं तो वो कर्म चलता ही रहता है. If one regularly performs worship of gods, makes gifts to Brahmins, and performs sufficient penance, the enjoyment becomes bearable. Hence, तो उसके बाद वो enjoyment के बाद क्या होगा, जो भी हम उसको भोग रहे हैं, enjoyment का अर्थ है यहाँ पे वो भोगना, क्या होगा, वो सहनीय हो जाएगा. उसके आगे के कर्म नहीं हम लिप्त होंगे. Hence, those who wish for happiness must refrain for committing sin. So underline बात बता दी. अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, अगर आप अपनी प्रसन्नता चाहते हैं, सच्ची खुशी चाहते हैं, तो पाप करने से बचिए. और ये होली सेंटर्स भी हम में जाकर के हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं. लेकिन वहां पे जाकर के एक अंडरलाइन वो लाइन है कि वहां जाकर के कायिक मानसिक वाचिक कोई भी पाप हम न करें और पूरी श्रद्धा भाव से करें. तो यही भक्ति के लिए भक्त को संदेश दिया गया है कि आप कैसे शिव जी से जोड़ सकते हैं. ही इज अवेलेबल टू यू, बट द कंडीशन इज मोहि कपट छल छिद्र न भावा. भांडा साफ रखते हुए आप शिव क्षेत्रों में जाइए. वो अप्रोचेबल हैं. बड़े मंदिर भी जाइए, बड़ी मंदिर भी जाइए तो सिर्फ इसलिए नहीं कुछ मांगने के लिए, आप क्योंकि मान रहे हैं इसलिए जाइए. नहीं तो अपने घर में ही वो स्वरूप से आप वो एनर्जी पा सकते हैं. तो ही इज अवेलेबल एवरीवेयर. गुरु जी इज अवेलेबल एवरीवेयर. ही इज अराउंड अस. हमें अपना मन साफ रखना है. एम्पथी, सिंपथी, लोगों के प्रति हमें संवेदनशीलता, वो बहुत जरूरी है. और कोई भी गलत काम करने से बचना है. उसको शिव जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से वो सीड फॉर्म में जब है तभी उसको कर देना चाहिए, कुचल देना. उसके बाद जो बचेगा उसको भोग करके, ये सोचते हुए कि हम भोग रहे हैं इसको, वो भोगते हुए हमको आगे बढ़ना है. इसी तरह गुरु जी की छत्र छाया में रह करके शिव पुराण को पढ़ना है, क्योंकि इससे डेफिनेटली हमारा भांडा साफ होता है. पढ़ना है, सुनना है, इससे डेफिनेटली हमारा भांडा साफ होता है. हम कुछ भी करते हुए अगर हमारे कानों में भी ये पड़ेगा तो कुछ ना कुछ तो हमको बेनिफिट जरूर होगा. तो इसीलिए हमको जुड़े रहना चाहिए. तो जो ये लाइव रीडिंग्स, लिसनिंग्स होती हैं, इनका मेरे को लगता है इनमें हमको बहुत हमारा अंतर्मन सच में शुद्ध होता रहता है. तो इसी से मैं अपना पाठन समाप्त करूं. इससे पहले आपसे सबसे क्षमा कि कुछ भी गलती हुई हो. और अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं एक बार मंत्र जाप कर लेती हूँ. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. जय गुरु जी. जय जय गुरु जी. ओवर टू यू आंटी फॉर रीडिंग इन हिंदी. जय गुरु जी.